اور شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے، اور وہ اپنے شہباز شریف اور یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی سپہ سالار یا جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں، کیونکہ فوج تب مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام اس کے پاس کھڑی ہو، اس کے پیچھے، اور اس وقت 90% پاکستان کی عوام وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے۔ دوسری اہم چیز جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہتے رہے ہیں اپنے وی لاگز میں، اریسٹ ہونے سے پہلے اور اس سے بعد ہم لوگ ان کے ورکرز کہتے رہے ہیں کہ 9 مئی کو ان کو جس وقت اریسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ویڈیو فوٹیجز کور کمانڈر ہاؤس کی یا باقی جگہوں کی جو تھیں جی ایچ کیو کے سامنے باقی جگہوں پہ، وہ ویڈیو فوٹیجز غائب ہو گئی ہیں، ان کو سامنے لایا جائے۔ اسی طرح 16 مارچ کو جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے زمان پارک کے گھر کے اوپر دھاوا بولا گیا تھا، اور اتفاق سے میں بھی وہیں پہ تھا، علامہ صاحب بھی تھے، باقی ہمارے ساتھی تھے، اس دن بھی وہ ویڈیو فوٹیجز مختلف جگہوں کی انہوں نے غائب کر دی ہیں۔ ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو فوٹیجز سامنے لائی جائیں، اور اس کے بعد یہ جس وقت 14 کو ہوا تھا، 18 مارچ کو جو ویڈیو فوٹیج جوڈیشل کمپلیکس میں تھا، اس کی ویڈیو فوٹیجز بھی غائب کر دی گئی ہیں، آج تک وہ عام پہ نہیں آئیں۔ ان کو پبلک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب جوڈیشری میں جا رہے ہیں اپلیکیشن دینے کے لیے کہ ان کو پبلک کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیونکہ اس کو چھپانا بھی ایک کرائم ہے، ایک جرم ہے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا 5 اگست کا دن کشمیر کے حوالے سے بھی ضروری ہے، اور ہمارا جو اپلیکیشن تھی اسلام آباد جلسے کے حوالے سے، وہ کل ہائی کورٹ نے جو چیف کمشنر کا آرڈر تھا، اسلام آباد چیف کمشنر نے جو ہمارا جلسہ اس نے منسوخ کیا اور اجازت نامہ واپس لیا پچھلے مہینے کا، وہ بلکہ اس مہینے کے 6 جولائی کا، وہ اس نے کہا ہے جی کہ آپ پھر کریں، اور انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہم لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اپلائی کریں گے کہ 5 اگست کو ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ جلسہ عام کریں، اور یہ بھرپور جلسہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس جلسے کی سربراہی جو ہے وہ علی امین خان گٹپور صاحب کریں گے، جو کہ چیف منسٹر کے پی کے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ریزرو سیٹ، مخصوص سیٹوں کے حوالے سے ان کے سامنے میری بہن کنول شوذب صاحبہ نے اپنے جو گزارشات تھی وہ رکھی، اور مائنورٹیز اقلیتی سیٹوں کے حوالے سے جو نام تھے مجھے میرے ساتھی یہاں پہ لال ملی صاحب نے دیے تھے، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے رکھے۔ باقی ساتھیوں نے بھی اپنا انپوٹ کیا اور انہوں نے اس پہ اطمینان اور تسلی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم کو ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی۔ نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ اس ملک کی 4 صوبوں کی زنجیر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ یہ پی ڈی ایم حکومت، شہباز شریف حکومت، مریم نواز حکومت، ان کے تو چھکے چھٹ گئے ہیں، یہ ڈوب گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوج کو آگے دھکیل دیا عوام کے سامنے، پی ٹی آئی کے سامنے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس جس طرز پہ ہوئی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ازیوم کیا اپنا رول بحیثیت فائنانس منسٹر یا بحیثیت انفارمیشن منسٹر یا بحیثیت انٹیریئر منسٹر، وہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے، اور وہ اس حکومت کے خلاف چارج شیٹ تھی، اور عوام اور پاک فوج کو کبھی بھی آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپریشیٹ کیا جو قومی اسمبلی میں جو ممبران سینٹ اور قومی اسمبلی اس وقت علامتی بھوک ہڑتال کیمپ لگا رہے ہیں، اور اس پہ 3 چیزوں کا جو ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اسیران بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور سارے اسیران جو ہیں
बशमूल मिलिट्री कोर्ट्स के उनकी रिहाई के लिए, महंगाई के खिलाफ और पाकिस्तान में अमन के लिए। ये और उसके साथ साथ इसका एक ही वाहिद हल है कि नए इलेक्शन होने चाहिए, जिसका भी बताया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये भी मैसेज है सब पाकिस्तान कौम के लिए कि कल का जो कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने दी है उसको भरपूर कामयाब बनाएं, बाहर निकलें, पुरअमन एहतजाज करें। हमारे जितने एहतजाज हैं वो पहले भी पुरअमन रहे और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला पुरअमन ही रहेंगे। और पंजाब का मेरे भाई यहाँ पे अहमद खान बचर साहब मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में हमारे MNAs के रोल को, उनकी कारकर्दगी को, हमारे पंजाब असम्बली के MPAs की कारकर्दगी को और बिलखसूस हमारे लीडर ऑफ दी अपोजिशन पंजाब में अहमद खान बचर की कारकर्दगी को बहुत अच्छे अल्फाज में सराहा और अप्रीशिएट किया। बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं कवल शौज़ब साहिबा को दावत देता हूँ कि वो बात कर लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह उमर अयूब साहब ने बताया कि ये जो हुकूमतें हैं, ये जो 17 सीटें जीतने के बाद फॉर्म 47 की बैसाखियों पे खड़ी जो हुकूमतें हैं पंजाब की और नेशनल असम्बली की, इनकी जितनी साजिशें हैं वो तो इन्होंने बड़ी अच्छी तरह बता दी। दूसरी साजिश जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान को तो पॉलिटिकल टारगेटिंग की जा रही है, लेकिन साथ में बुशरा बीबी की जो टारगेटिंग की जा रही है वो इंतहाई शर्मनाक है और इंतहाई अफसोसनाक है। वही टाउट्स जिन्होंने इद्दत केस बनाया, जिसका में सबसे बड़ा नाम उस मुलाजिम का है जो खान साहब के घर में काम करता था, ऑन चौधरी, और वहाँ पर बहुत सारे काम थे जो ये किया करते थे। जहांगीर तरीन साहब की पर्सनल मुलाजमतों से ये मुलाजमीन थे जो उधर आए थे। और ऑन चौधरी साहब जो हैं वो अपने साथ 2 और असिस्टेंट, जो एक तो जहांगीर तरीन साहब के पास काम करता था इमरान शाह, और उसका दूसरा भाई इनाम शाह को लेकर आए थे। और वज़ीर आज़म बनने के बाद जब खान साहब को मालूम हुआ कि इनाम शाह जो है ऑन चौधरी का स्पॉन्सर, वो 2 जगहों से तनख्वाहें ले रहा है, तो फिर उन्होंने उसको वहाँ से हटा दिया था या निकाल दिया था। तो ये करप्शन की इनकी दास्तानें पुरानी हैं और निकलती आ रही हैं। अब ये देखिए, आप इनका लेवल चेक करें कि जिस वक्त बुशरा बीबी को टारगेट किया गया ताकि इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ साथ उनकी तजलील की जा सके, बुज़दिल लोग होते हैं जो घर की औरतों के ऊपर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं और उन पर अटैक करते हैं। तो ये जो बुज़दिलीन, नहीं मैं तो इनको कुछ और कहती हूँ, बुज़दिलों की भी कोई ना कोई एथिक्स होंगे जो ख़वातीन को इतने घटिया तरीके से टारगेट करते हो और घर की पर्देदार ख़वातीन की तजलील करने की कोशिश करते हैं, वो बुज़दिल नहीं होते हैं। उनके लिए कुछ और अल्फाज होते हैं जो मैं अब नेशनल TV पे बोलना नहीं चाह रही हूँ। तो ऑन चौधरी साहब और उनके जो मुलाजिम इनाम साहब थे, ऑन चौधरी बन गया इद्दत जैसे घटिया गलीज केस में अप्रूवर और वहाँ जाके झूठी गवाहियाँ देता रहा, और इनाम शाह जो है वो तोशा खाना जैसे केस में वो जाकर बना हुआ है इस वक्त अप्रूवर, और झूठी गवाही की बुनियाद पे, इस झूठे केस की बुनियाद पे बुशरा बीबी को इस वक्त जो है वो हब्से बेजा में या इल्लीगल डिटेंशन में रखा गया है। और मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से ज़हनी टॉर्चर किया जाए, उनको तोड़ने की कोशिश की जाए, ताकि वो इनकी दीवी जो डीलें हैं या डायलॉग है, जो इनको ये डायलॉग कहते हैं एक्चुअली में डील होती है, उस पर किसी तरीके से आ जाए। सो लिहाजा हम यहाँ पर ये ज़रूर बताएंगे कि बुशरा बीबी ना सिर्फ ये कि फॉर्मर खातून अव्वल हैं, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन बशमूल PTI की ख़वातीन उनके साथ खड़ी हैं। इस तरह के झूठे केसेस जैसे इद्दत केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत ख़वातीन निकली, इस घटिया केस में, इस तोशा खाना केस में उस वक्त तक ख़वातीन निकलेंगी, एहतजाज करेंगी जब तक कि ये झूठा केस ख़त्म नहीं किया जाएगा। और सुन लें वो झूठे अप्रूवर्स जो ख़वातीन के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, बिलो द बेल्ट कमेंट्स करते हैं, झूठी गवाहियाँ देते हैं कि पाकिस्तान में चाहे सिविल सोसाइटी की ख़वातीन बेशक सोई रहें या कोई और जो औरतों के हकूक़ की ख़वातीन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेशक सत्तू पी के सोई रहें, लेकिन ये पॉलिटिकल वर्कर्स, ये ख़वातीन जिन्होंने पूरे 1.5 साल से टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी, जेलों में भी रही हैं, बाहर भी तशद्दुद बर्दाश्त किया है, वो अपने हक़ की आवाज़ के लिए खड़ी होंगी, वो बुशरा बीबी के हक़ की आवाज़ के लिए खड़ी होंगी। रिज़र्व सीट्स का भी मैं बता दूं
बहुत ज़्यादा शोर और हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो ख़वातीन खड़ी रही हैं डट के और जिन्होंने जो है वो कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की हैं उनको बराबर तरीके से देखें और एक बैलेंस तरीके से जो है वो लिस्ट जो है वो उनके पास जा रही है। हमने उनको बताया भी है, उनकी इंस्ट्रक्शंस भी थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग में भी हिस्सा रही हैं और मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में मुख्तलिफ जो हमारी ये पूरा 1.5 साल का सफ़र है 9 मई के बाद जिसमें वो बहुत अच्छे तरीके से सामने आई हैं, उन तमाम ख़वातीन को इंशाअल्लाह ताला मौका देंगे। नाम हमने उन्हें बहुत सारे बताए, उन्होंने ख़ुद भी बहुत सारे नाम हमें दिए हैं, उसके मुताबिक जो है वो इंशाअल्लाह लिस्ट फ़ाइनल होगी। उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल साहब की सरबराही में इसको फाइनल किया जाएगा और जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक। एक सेकंड मेरे भाई, एक सिर्फ मैं बात करूं कि हमारे साथी हाजी इम्तियाज साहब को कल शाम को MNA साहब को अपनी वो बीमार वालदा को देखने गए थे, उनको एंटी करप्शन और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने उठाया, उसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हमारे MNAs और MPs के खिलाफ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हुआ है और उनको प्रेशराइज करने के लिए उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी जितनी एफिडेविट्स हैं वो इलेक्शन कमिशन में जमा हो गई हैं और उन्होंने हर जगह पे मुख्तलिफ ये लोग आके उनको क्या कहते हैं ब्राइब्स और रिश्वत जो है वो ऑफर कर रहे हैं। आपकी पीछे हो जाएगी। अलामा साहब अभी बात करेंगे, उसके बाद आप अलामा साहब आइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पाकिस्तान की सरजमीन के मादर वतन के गैरतमंद शुजा बहादुर और बाहिम्मत बेटे से मुलाकात की जिसे बेगुनाह बगैर किसी जुर्म के कैदी करने की कोशिश की गई है। पीटीआई रहनुमा इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वक्त है और आप देख लेंगे बन्नू में हर जगह कोशिश की जाती है। 9 मई में भी ऐसे हुआ है। 9 मई अगर सच्चे होते ये लोग तो जो CCTV फुटेजेस हैं लेके आते सामने, क्यों छुपाई हैं? 9 मई एक प्लान था जिसे कहते हैं ना लंदन प्लान का हिस्सा था। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम को ये बात जान लेनी चाहिए कि हमने अपने वतन को बचाना है और जो लोग अपने वतन के अहम इदारों को तबाह करने जाते हैं, पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते तबाह हों, लेकिन जब मुतवल्ली ही अपने जिस बाजार का वो मुतवल्ली है उसका एहतराम ना करे तो बाकी लोग भी नहीं करते। आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी, अपनी जगह तब्दील करनी पड़ेगी, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, मुल्क की खातर, वतन की खातर, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की खातर और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की खातर। हम अगर बाहर निकलते हैं तो वतन की खातर। इमरान खान पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है, पाकिस्तान के 90% अवाम पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है और बस। लिहाजा हम इस रास्ते पर खड़े हैं, चलते रहेंगे और इंशाल्लाह जीत अवाम की है, डटे रहने वालों की जीत है, बुखलायों की जीत नहीं है। जिसने बजट बनाया है उसको मेडल नहीं, उसको जेल में होना चाहिए था। जिन्होंने आज का जी सारा करतूत किया मुल्क को तबाह, ये जेल में होने चाहिए थे। लेकिन ये लालच के कैदी, ये हवा हवस के कैदी, ये इक़्तिदार के कैदी, ये पता नहीं कितने जिंदानों के कैदी हैं। हारा हुआ लश्कर है। इंशाल्लाह अवाम अब देखना जल्द ही इस लश्कर का जनाजा उठेगा, दुनिया देखेगी कि ये निशान इबरत बनेंगे ये लोग। ये अल्लाह का कानून है कि जुल्म की रात बिलाकर खत्म होती है और अदल का सवेरा तुलू होता है। फिरौन कहाँ है, नमरूद कहाँ है, शद्दाद कहाँ है? पीटीआई और इत्तेहादी रहनुमा मीडिया से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं।